Bismillahirrahmanirrahim. Welcome dear students. This is our physics class for grade 10 and I am your physics teacher Yasir Mahmood. Students, our today's topic is acoustic. So in this lecture we'll discuss that what is meant by acoustic and what is meant by acoustic protection. So acoustic is actually the science that is related with the sound. So acoustic is the branch of physics that deals with the sound, with the effects of sound, or we can say that we can define it as acoustic is the science or it is the branch of physics that deals with the production, control, transmission, reception, and effects of sound. So all the things related to sound are studied in acoustic. The term acoustic was derived from the Greek word for acoustic. This one was the Greek word akostos. Akostos means heard. So in this lesson, or in acoustic, we study about the sound, we study about production of sound, about transmission of sound, reception of sound that we have already studied in our previous lectures. So we have studied that what is meant by production of sound, that whenever an object vibrates it produces sound, and how sound transmission takes place. We studied that for sound transmission a material is required, as sound is the type of mechanical wave. For reception of sound, some receiving device is required that again converts the vibration into the sensation of hearing. And we also study about the control and the effects of sound. For example, as we have studied about the reverberation and echo. So reverberation means the reflected sound. After reflection sound is heard but it is not clearly heard, then it is called reverberation. And echo means the reflected sound that is heard clearly. For reverberation, the time difference between the original sound and reflected sound to strike the air membrane should be less than 0.1 second, and for echo it may be equal to or greater than 0.1 second. We have discussed all these things in detail in our previous lectures. So the effects of reverberation and echo that are not good for the communication in certain places. For example, if we are in concert hall, in halls having different programs or functions, so in these cases जो रिवर्बरेशन की साउंड्स हमें सुनाई देंगी और जो एकोज होंगी, सो वो अनोइंग होंगी हमारे लिए. सो वी कैन से दैट ये जो ऑल दीज अनोइंग साउंड्स हैं, अनोइंग इफेक्ट्स ऑफ साउंड्स हैं that may be due to reverberation or echo. So इन annoying effects से हम किस तरह से बच सकते हैं, किस तरह इनको reduce कर सकते हैं, all these things are studied in acoustic and acoustic protection. So acoustic protection is the method to get rid of undesirable effects of sound. जैसे मैंने अभी आपको बताया, to get rid of means उससे छुटकारा हासिल करने के लिए, to avoid undesirable effects of sound by using soft materials or absorbents. एब्जॉर्बेंट्स भी ऐसे मटेरियल्स को भी बोलते हैं जो कि सॉफ्ट पोरस मटेरियल्स होते हैं, जो कि साउंड को मोस्टली एब्जॉर्ब कर लेते हैं. सो इट इज़ द मेथड टू गेट रिड ऑफ अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ साउंड विच आर नॉट डिज़ायरेबल, विच आर नॉट गुड, जो कि अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स हैं साउंड के, लाइक रिवर्बरेशन, एको के जो इफेक्ट्स मोस्टली कम्युनिकेशन में जो आते हैं, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आते हैं कम्युनिकेशन में. सो टू गेट रिड ऑफ ऑल दीज अनडिज़ायरेबल इफेक्ट्स ऑफ साउंड बाय यूजिंग सॉफ्ट मटेरियल्स आर एब्जॉर्बेंट्स आर पोरस मटेरियल, दिस इज़ कॉल्ड एकॉस्टिक प्रोटेक्शन. फर्स्ट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने, Sabine was the first who carry out scientific study of architectural acoustic. आर्किटेक्चरल एकॉस्टिक मीन्स बिल्डिंग के डिज़ाइंस वगैरह में एकॉस्टिक को किस तरह से मद्देनज़र रखा जाए, उसकी एकॉस्टिक प्रोटेक्शन के हवाले से जो सबसे पहले जो साइंटिफिक स्टडी की थी वो किसने की थी, सेबीन साइंटिस्ट का नाम था, उन्होंने की थी. सो इन्होंने सेबीन लॉ भी पेश किया था, दैट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन आर दिस कोर्स. सो उसको हम यहाँ पे स्टडी नहीं कर रहे, बट इन्होंने सबसे पहले एकॉस्टिक के हवाले से आर्किटेक्चरल एकॉस्टिक जो है उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, हम ये कह सकते हैं. सो आप देखें डिफरेंट जो बिल्डिंग्स होती हैं, फॉर एग्जांपल जो मस्जिद बनी होती है, मॉस्क होती हैं, उसमें कहीं पे आपने देखो ऐसे गुंबद सा बना होगा. सो जहाँ पे
ऐसी जो जगह होती है, आर्क नुमा जगह जो होती है, उसका मकसद ये होता है कि जो साउंड इसके ऊपर आके स्ट्राइक करे, फॉर एग्जांपल यहाँ से साउंड स्ट्राइक कर रही है तो वो इधर आ रही है, इधर स्ट्राइक करने वाली भी इधर आएगी, इधर स्ट्राइक करने वाली, तो साउंड एक ख़ास जगह पे यहाँ पे फोकस्ड होके मिलती है। सो आर्क्स जो जगह होती हैं, पैराबोलिक जो जगह होती हैं, उनका मकसद होता है साउंड को फोकस करना किसी स्पेसिफिक रीजन पे। इसी तरह से जो फ्लैट सरफेसेस होती हैं वो इक्वली साउंड को रिफ्लेक्ट करती हैं इन ऑल दी डायरेक्शंस। और कुछ एब्जॉर्ब्स करने के लिए इनको जो पोरस वगैरह जो मटेरियल्स हैं उनके लिए, या आप कह सकते हैं जैग्ड सरफेसेस होती हैं लाइक दिस, इस तरह की सरफेसेस होती हैं, ठीक है, इनमें कुछ साउंड स्कैटर वगैरह हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शन में, तो उसका इफेक्ट इतना ज़्यादा नहीं मिलता है। सो कोई हार्ड सरफेसेस हैं तो उनसे साउंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, हार्ड सरफेसेस से साउंड ज़्यादा रिफ्लेक्ट होती है, सॉफ्ट सरफेसेस से साउंड कम रिफ्लेक्ट होती है, एब्जॉर्ब ज़्यादा हो जाती है। सो ये सब चीज़ें जो होती हैं, ऑल दीज आर स्टडीड इन एकॉस्टिक प्रोटेक्शन। एकॉस्टिक प्रोटेक्शन में मोस्टली हम ये देखते हैं कि जो बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जो कंसर्ट हॉल्स हैं, जो बड़ी बिल्डिंग्स हैं, वो किस तरह से बनाई जाएं सो दैट उनमें ये साउंड का इश्यूज़ ना आए। फॉर एग्जांपल हम अगर स्पीच कर रहे हैं तो एक हम बात करते हैं, लेट्स सपोज हम बोलते हैं हेलो, तो वो बात 3-3 बार हमें सुनाई दे, तो फिर हमारी जो नेक्स्ट डिस्कशन होगी उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी सुनने वालों को, तो इस रिफ्लेक्शन की वजह से या इस एको की वजह से, सो एको और रिवर्बरेशन की वजह से ये इश्यूज़ आ जाते हैं कि सुनने वाले को आपकी बात सही से समझ नहीं आती है। दैट्स वाई हम इनसे अवॉइड करने के लिए हम बिल्डिंग्स को ऐसे बनाएंगे जिसमें ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये इनका सामना हमें ना करना पड़े, इनको ओवरकम करने के लिए हम उनको इस तरह से बनाएंगे। सो उसमें अगर हम रिफ्लेक्शंस वगैरह को या इकोज़ को हम कम करना चाहते हैं, रिवर्बरेशन को कम करना चाहते हैं, उसके इफेक्ट को, तो हमें क्या करना पड़ेगा? उसके लिए कुछ ये मेन पॉइंट्स हैं जिन्हें हम देख लेते हैं। इनमें से ये जो पॉइंट्स हैं, इनमें से भी मोस्टली ये सेबीन इन्होंने ही ये बताए हुए इनके पॉइंट्स हैं। सो मोस्टली इनमें ये होता है कि हाउ टू कंट्रोल द रिवर्बरेशन एंड इको इफेक्ट इन दी रूम्स, इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए बाय यूजिंग हैवी कर्टन्स, कर्टन्स आपको पता है पर्दों को बोलते हैं, बाय यूजिंग हैवी कर्टन्स को अगर हम यूज़ करें तो वो क्या करेंगे, वो मोस्ट ऑफ साउंड को क्या करेंगे, एब्जॉर्ब कर लेंगे। ये एब्जॉर्बेंट के तौर पे बिहेव करते हैं, साउंड एब्जॉर्बेंट के तौर पे बिहेव करते हैं कर्टन्स। सो जब आप कर्टन्स वगैरह यूज़ करेंगे तो ये ज़्यादातर साउंड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और फिर ये एक और रिवर्बरेशन का इफेक्ट आपको कम सुनाई देगा, ठीक है। इसी तरह से अगर आपने फॉर एग्जांपल रूम को एम्प्टी रखा हुआ है, खाली किया हुआ है रूम को, और उसमें आप बात कर रहे हैं, तो वो आपको आपकी आवाज़ दोबारा बार बार सुनाई देगी, उसकी गूंज रहेगी आपकी आवाज़ की। सो ये प्रॉब्लम्स जो हैं इनको ख़त्म करने के लिए, ओवरकम करने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं रूम में जो एब्जॉर्बेंट के तौर पे बिहेव करती हैं। हैविंग मच ऑडियंस, फॉर एग्जांपल आप कंसर्ट हॉल वगैरह में, तो वहाँ पे जितने ज़्यादा ऑडियंस होंगे, ज़ाहिर बात है ऑडियंस जो है वो भी एब्जॉर्बेंट के तौर पे बिहेव करेंगे, उनके क्लॉथ्स वगैरह। सो ऑडियंस अगर ज़्यादा होगी तो भी वहाँ पे एब्जॉर्बेंट का प्रोसेस ज़्यादा हो जाएगा और रिवर्बरेशन और इको के इफेक्ट्स क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। सिमिलरली बाय यूजिंग सॉफ्ट मटेरियल्स इन द हॉल्स वगैरह में सॉफ्ट मटेरियल्स यूज़ कर लेंगे। सॉफ्ट मटेरियल मीन्स सोफ़ाज़ यूज़ कर सकते हैं आप, कारपेट्स यूज़ कर सकते हैं, रग जो है, रग मीन जो दरी चटाई वगैरह जो भी चीज़ होगी, आप इस तरह की चीज़ें यूज़ कर सकते हैं जो कि साउंड एब्जॉर्बेंट के तौर पे बिहेव करती हैं और फिर उनसे साउंड की रिफ्लेक्शन और इको के प्रोसेस, ये इफेक्ट्स कम हो जाते हैं। बाय हैविंग फ्यू ओपन विंडोज़ इन दी हॉल्स वगैरह में कुछ ओपन विंडोज़ अगर हों तो उसमें रिफ्लेक्शन नहीं होगी, और रिफ्लेक्शन नहीं होगी, साउंड ज़्यादातर साउंड वहाँ से बाहर ही निकल के चली जाएगी, तो वहाँ पे बार बार आपको साउंड सुनाई देना ये कम हो जाएगा। सो वी हैव टू कीप इन माइंड ऑल दीज थिंग्स वाइल डिज़ाइनिंग द बिल्डिंग। तो उससे ये होगा कि ये प्रोसेसेस जो है, इको रिवर्बरेशन, इनके इफ़ेक्ट्स कम हो जाएंगे और हमारे लिए जो है कम्युनिकेशन जो है वो बहुत सिंपल हो जाएगा, मींस उसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी। असल में जब जितनी ज़्यादा नॉइज़ या ये वाले इफ़ेक्ट्स होते हैं, रिवर्बरेशन वगैरह के इफ़ेक्ट्स होंगे, उससे ये होता है कि उससे बंदे को डिप्रेशन वगैरह और ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये होने लगते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल कहीं पे अगर कोई जो भी मैंने बोला कि विंडोज़ को अपने खोल के रखेंगे तो उनमें से साउंड जो है वो ज़्यादातर बाहर निकल जाएगी, रिफ्लेक्शन उसकी नहीं होगी। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो इको रिवर्बरेशन, इनके इफ़ेक्ट्स अगर ज़्यादा हों तो नॉइज़ पोल्यूशन में भी ये बहुत ज़्यादा इनका इफ़ेक्ट बनता है, जिसकी वजह से जो वहाँ पे रहने वाले लोग हैं उनको डिप्रेशन और एनजाइटी ये होने लगती है, एनजाइटी होने लगती है।
तो ये इश्यूज़ जो हैं ये सामने आते हैं। हम नॉइज़ पोल्यूशन जो है उसको हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखेंगे कि नॉइज़ पोल्यूशन के क्या इफ़ेक्ट्स हैं। बल्कि आप खुद भी उसको देख सकते हैं, कोई ऐसा सच उसमें इशू नहीं है, आपका जनरल टॉपिक भी नहीं है, वो जस्ट इन्फॉर्मेशन के तौर पे एक्स्ट्रा लिखा हुआ है। सो नॉइज़ में ये होता है, नॉइज़ अनप्लेजेंट साउंड को बोलते हैं, अनप्लीजिंग साउंड होती है। द साउंड दैट हैज़ अनप्लीजिंग इफेक्ट ऑन हियरिंग इज कॉल्ड नॉइज़, एंड द साउंड दैट हैज़ प्लीजिंग इफेक्ट और प्लेजेंट इफेक्ट on hearing is called musical sound. So एक होती है म्यूजिकल साउंड एंड द सेकंड वन इज़ नॉइज़। तो नॉइज़ जो होती है ये अनप्लीजिंग साउंड होती है, जैसे साउंड ऑफ हॉर्न हो गई, साउंड ऑफ रिक्शा हो गई, साउंड ऑफ ड्रिल मशीन हो गई, साउंड ऑफ ट्रैक्टर। तो ये साउंड जो होती हैं ये अनप्लीजिंग होती हैं, ये सुनने में खुशगवार नहीं होती, तो ये नॉइज़ इनको हम बोलते हैं। अब ये जो नॉइज़ वगैरह है इससे भी, जैसे मैं अभी आपको बता रहा था, ये प्रॉब्लम्स होते हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, सो लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, अंडरस्टैंड नहीं कर सकता बंदा दूसरे की आवाज़, दूसरे की बात को, उसको समझ नहीं पाता। सो ये प्रॉब्लम्स जो हैं ये हाई ब्लड प्रेशर फॉर एग्जांपल, ये प्रॉब्लम्स होते हैं। तो ये इंसानों को भी होते हैं, जानवरों को भी ये प्रॉब्लम्स होते हैं। इवन जो प्लांट्स होते हैं उनके भी नर्वस सिस्टम वगैरह जो है उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है नॉइज़ का, और वो अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते, क्योंकि नॉइज़ जो है वो वाइब्रेशंस हैं सिंपली, और वाइब्रेशन जो है वो जाके उनके सेल्स वगैरह के साथ जब स्ट्राइक करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो उतनी ज़्यादा एनर्जी उनको मिलती है जो उनके लिए डिस्ट्रक्शन का बायस बनती है, एंड वो प्रॉपरली ग्रो नहीं कर पाते। सो ये सारे इफेक्ट्स इसके आते हैं। सो वी कैन से दैट इन acoustic we study about all the things related with sound. We study about the acoustic protection, means the how to get rid of unpleasing effects of sound by using any materials like soft material, how to get rid of unpleasing effect of reverberation and echoes in halls, in rooms, by using soft materials and absorbent. So this is called, so this was our today's topic, that is acoustic. Revise the topic and prepare well for your papers. इसमें जो रिमेनिंग कुछ पोर्शन है आपका, जो कि सेकंड चैप्टर के न्यूमेरिकल्स वगैरह हो गए, विल डिस्कस दीज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर्स। सो उनकी आप टेंशन न लें, आप जो स्टडी कर चुके हैं उसको अच्छे से रिवाइज कर लें, जो रिमेनिंग है उनको हम देख लेंगे, वो आपके टॉपिक से रिलेटेड ही, इतना इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ओके, थैंक यू।